Good morning, students. Welcome to your EVS class. So, students, we are in the chapter Our Constitution. And till now, what we have seen that why the Constitution for India was made. हमारा संविधान क्यों बना था? ये बना था ताकि हमारे देश को अच्छे से शासन किया जाए. We can rule our country properly following the laws made by the leaders of our country. Now, what is there in the Constitution? Let us see today. Today, this is only the topic of this class. Now, the Constitution of India is the lengthiest. वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ मैनी रूल्स, मैनी लॉज विच द इंडियन सिटीजन शुड फॉलो, बट हियर वी विल सी a few of them which are important for every Indians. Now the first one, okay, the first important thing given in our constitution, let us see what is there. All citizens are equal and have equal rights. All Indians who are living in India, they are equal. Equal in what sense? For job, कोई भी काम करो वो काम अमीरी गरीब के हिसाब से नहीं मिलेगा. Okay, everybody can do a particular job. Education in a school, all students are equal, all children are equal. It is not that if you are rich you will get admission in a good school, if you are poor you will get admission in a bad school. No, everybody has the right to get education, get admission in all types of school. Okay, then you can go to any place, you are free to go, you can practice any religion. आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते, अपना सकते हो. nobody can tell you that stop you from practicing that religion. So all Indians are equal, they have the equal right, whether you are rich or poor. Okay, whether you belong to any caste, a particular caste, no, सबके लिए जो भी नियम है वो सारे इंडियंस भारत के लिए एक बराबर है. सेकेंड, आवर्स इज अ सेक्युलर कंट्री. मैंने कहा था ना जस्ट कि ऑल इंडियंस आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. अगर आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू इट. आप जैनिज्म प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू फॉलो दैट रिलीजन. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सेक्युलर कंट्री. आप कोई भी धर्म को ईजिली मान सकते हैं. थर्ड, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इन इंडिया देयर इज़ अ हेड ऑफ द कंट्री हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, and how the prime minister is elected by the process of voting. yes, चुनाव के जरिए से हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं. दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक गणतंत्र कंट्री. ओके, सो दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक इंडिया. Now next, liberty or freedom is a very important part of constitution. सारे भारतीयों को फ्रीडम, आज़ादी दिया गया है कि अगर वो कुछ सोच रहे हैं अपने कंट्री के बारे में, अपने देश की भलाई के बारे में, they can speak freely. Okay, they can speak in public freely, nobody can stop them. लेकिन अगर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं in that there is something wrong about the country, then you will be stopped. Okay, so these are certain things which are there in our constitution. Now when the constitution is giving us this freedom, we are having certain rights. हमारा कुछ rights and duties भी है. अगर हमको कुछ rights दिया गया है तो हमको उसको पूरा करने के लिए हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोग उसको कैसे पूरा करें. द फर्स्ट वन, राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. यू आर फ्री टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. लाइक यू आर लिविंग इन रांची नाउ. If you wish, you can live in Kolkata, you can live in Mumbai, nobody can stop you. Right to travel anywhere in the country. अगर आपकी इच्छा है कि हम भारत के हर एक प्रांत में घूमें, आपको कोई रोक नहीं सकता है. राइट टू हैव एनी प्रोफेशन, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब. आप कुछ भी काम कर सकते हो, nobody can stop you from doing that. Right to follow any religion. As we said that India is a secular country, you are free to follow any religion. Right to express one's belief and opinions freely. आप अपना विचार easily देश के सामने रख सकते हो. Right to education. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा सबके लिए है. ये नहीं है कि शिक्षा सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों को ही मिलेगा. नो, everybody has the right to education. Then right to vote. All Indians who are above the age of 18, जिसकी उम्र 18 साल और उससे ऊपर है, they can cast their vote. Okay, so this is the right in a democratic country. Next, children who are
14 and below the age of 14, they cannot be forced to do work. Child labor, वो आप नहीं कर सकते हो. किसी भी बच्चे की उम्र जो 14 साल से कम है उसको आप फोर्सफुली नहीं काम करा सकते हो. आप बहुत घरों में देखते होंगे मेड है, काम करने वाली है, जो बच्ची को उन्होंने रखा हुआ है. दैट इज़ रॉन्ग. यू कैन रिपोर्ट टू अ पुलिस एंड उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है. ठीक है. एंड राइट टू इक्वल जस्टिस, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सब बराबर है. अगर किसी अमीर व्यक्ति ने एक जुल्म किया है, सेम अपराध किसी गरीब व्यक्ति ने किया है, दोनों के लिए कानून अलग नहीं होगा. सेम वे में दोनों को पनिशमेंट मिलेगा. सो एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. नाउ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिविंग अस सर्टेन राइट्स, ओके, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर्तव्य भी करें. दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज़. लेट अस सी व्हाट आर दोज. लाइक रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. हमें अपना संविधान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह की रक्षा करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रहना चाहिए. रेस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ आवर कंट्री, जो भी नियम हमारे कंट्री के लिए बना हुआ है, हित के लिए बना हुआ है, उसको हमें स्वीकारना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए. बिलीविंग इन द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, द पर्सन हु हैड फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, उनका जो भी आइडियल्स था, सोच था, उसको हमें अपनाना चाहिए. बिलीविंग इन एंड वर्किंग फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, वी शुड डू दैट टाइप ऑफ वर्क विच इज़ गुड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री. हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमें हमारी देश की एकता बनी रहे. ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि एकता को हम लोग बांट सके. ओके. नेक्स्ट, डिफेंडिंग द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. वी शुड प्रोटेक्ट the freedom of our country because people had fought for many years to gain the freedom. So we should protect our freedom. Treating others as equals and respecting their belief. All the Indian citizens should be respected properly. Respecting our cultural heritage. हमारे भारत के जो भी मॉन्यूमेंट्स है, लाइक द ताज महल, द रेड फोर्ट, देयर आर मैनी कल्चरल हेरिटेजेस. वी शुड प्रोटेक्ट दैट बिल्डिंग. If you go to visit certain places, you will see that people वहाँ क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मॉन्यूमेंट्स को गंदा करते हैं, कुछ लिख देते हैं दीवारों पे. नो, दैट इज़ रॉन्ग. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज. Then protecting our natural environment. It is one of the important duties of every Indians that we should protect our environment. पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. We should stop cutting off trees. We should keep our surrounding clean. This is one of our duties. And protecting public properties. Like there is a park in your neighborhood. आपके आसपास कोई पार्क है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस पार्क को सही तरीके से रखें. कुछ झूले लगे हुए आप देखोगे, कोई उसको तोड़ रहा है, गंदा कर रहा है. नो, दैट इज़ रॉन्ग. वी शुड प्रोटेक्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टीज. सो स्टूडेंट्स, this is the chapter about constitution, which is giving us certain rights and telling us to do certain duties for the welfare of our country. Hope you have understood. Thank you, students.